हाँ जी, as you already know, the topic pressure is almost same for both IG O level, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है. The objectives that we need to cover मैं पहले वो दिखाया था आप लोगों को. For the topic pressure are here. In this topic, what we need to study. So we are for the pressure, we have the define the pressure, means basic definition, recall and use the equation for pressure is equals to force to one area. Then we need to study, describe how the pressure varies with the force and the area. Means क्या change आता है अगर area increase हो या decrease हो या force increase हो या decrease हो हमारे everyday के examples के साथ. ठीक है. State the pressure at a surface produce a force in the direction at right angles to a surface. Describe an experiment to show this. इस बात को show करने के लिए experiment बताइए किस बात के लिए. Pressure at a surface produces a force in the direction at right angles to a surface. ये आपको liquid की example देंगे तो बड़ा अच्छा समझ में आएगा अभी. Describe how the height of the liquid column in a liquid barometer may be used to determine the atmospheric pressure. हम atmospheric pressure को calculate करने के लिए किस तरह से इसको use कर सकते हैं barometer को. Or describe quantitatively how the pressure beneath the surface of a liquid changes with depth and the density of liquid. मतलब how the depth and density causes the change in the pressure of the liquid. ये पढ़ेंगे. फिर रिकॉल करनी है और यूज करनी है प्रेशर की न्यू इक्वेशन जिसे हम कहते हैं रो जी एच, मतलब डेंसिटी इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट, रो जी एच. दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स. दीज आर द फॉलोइंग. एक मिनट जी. So these are the following objectives that we must need to understand for the topic pressure. ठीक है. ये हमें ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से लाजमी पता होना चाहिए ताकि हमें पता हो कि ये 6 objectives are here that we need to cover from the syllabus of the pressure. ठीक है. So generally when we talk about the pressure first of all हमें समझना होता है when we talk about the pressure सबसे पहले हमें pressure is totally about the solids, एक type. फिर second type is liquids and gases. So when we talk about the pressure आप ये बात दिमाग में रखिए. Generally students क्या करते हैं बस ये definition याद करते हैं, force per unit area. Force per unit area is called pressure. बात ठीक है, definition की हद तक ठीक है, definition की हद तक बिल्कुल ठीक है. क्यों ठीक है डेफिनेशन कहता है क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. बिल्कुल सही है ये बात. बट इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता. कॉन्सेप्ट क्लियर किस बात से होगा व्हेन यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि प्रेशर इज बेसिकली अ फोर्स व्हिच इज concentrated or distributed to a specific amount of the surface या to a specific surface area. मतलब किसी चीज को अगर मैं अपने हाथ से प्रेस करना स्टार्ट कर दूं, फॉर एग्जांपल मेरे सामने टेबल रखी हो पूरी या कोई कॉपी रखी हो, कॉपी को मैं अपने हाथ से प्रेस करना स्टार्ट कर दूं तो बेटा द प्रेशर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कॉपी. ठीक है. और उसके इफेक्ट्स कॉपी के कॉर्नर्स पे एजेस पे कम होंगे और सेंटर से अगर पुश कर रहा हूं तो वहां जरा इफेक्ट्स ज्यादा होंगे, है ना. दैट्स व्हाई वी से अंडरस्टैंडिंग में इसलिए हम कहते हैं द प्रेशर द कंसंट्रेशन और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स ऑन द सरफेस इट इज अप्लाइड, जिस पर भी अप्लाई की जाएगी. ठीक है. प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय द रेशियो ऑफ फोर्स टू यूनिट एरिया. मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स कैसा यूनिट न्यूटन, सरफेस एरिया इज ऑलवेज इन मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. So what do we got? We got the Newton per meter square is equals to what? Is equals to the pressure. मतलब pressure डिस्कवर किसने किया था? पास्कल भाई ने. तो उनका ऐसा यूनिट उन्हीं के नाम पर है PA पास्कल. It is a scalar quantity. It does not have a specific direction. That is why it has no direction. That is why the pressure is a scalar quantity. एग्जाम्पल अगर इसको सॉलिड के बिहाफ पे समझे तो इंतहाई आसान तरीका जो हम सॉलिड के बिहाफ पे पढ़ने वाले हैं. क्यों ये सॉलिड के बिहाफ पे सबसे आसान एग्जाम्पल क्यों है? अभी ये डाउनवर्ड लग रही है फोर्स. क्यों? क्योंकि वेट है, ऐसा है ना. बट फोर्स कहाँ लग रही है? इस पॉइंट पर. प्रेशर कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ होगा?
पूरी बेस पर, तो किसी एक खास डायरेक्शन में तो अप्लाई नहीं हो रहा ना, ऐसे पूरे में फैल रहा है ना, और यहाँ ज्यादा होगा और कॉर्नर्स पे आकर लेस हो जाएगा। तो क्योंकि एक अप्रोप्रिएट डायरेक्शन नहीं है इसी कॉन्सेंट्रेशन की, दैट इज व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बेटा समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। सो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, आसान सा काम है। फोर्स इज 100 न्यूटन, एरिया 0.02 रखा, हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अब दूसरी जगह क्या देखते हैं? दूसरी तरह से क्या देखते हैं कि तो प्रेशर के फॉर्मूला में जो एरिया है वो अपॉन में है, अपॉन में है ना। तो whenever a quantity is in a denominator, so it is always inversely proportional to the subject। मतलब प्रेशर क्या है, तो एरिया प्रेशर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज्यादा एरिया बढ़ता चले जाएगा, प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है। और यह क्यों कहने कि जितना प्रेशर बढ़ाना होगा उतना एरिया कम कर देंगे। पहले एरिया था ये ए वाला इतना सा, अब आ गया ये A2 वाला, पूरा एरिया बढ़ गया, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, कम। यहाँ प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, बिकॉज दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। कीपिंग द कॉन्सेप्ट इन माइंड, अब आपके सामने यही दो पॉइंट्स आ गए जो आपने समझ लिए ऑलरेडी। क्या कहा मैंने? Pressure is inversely proportional to area. If the pressure is if the pressure increases, area decreases, or if the area increases, pressure decreases. ठीक है, वाइस वर्सा होगा हमेशा। जितना ज़्यादा स्पेस सरफेस एरिया कम होगा। इसका एविडेंस देते हैं आपको। इसका एविडेंस किस तरह मिलेगा? आपने देखा होगा फीमेल्स हम सबके घर में होती हैं, हमारी मदर्स सिस्टर्स जो भी हैं, वो शूज पहनती हैं जिनमें होती है हील्स। ठीक है। हील वाला शूज जो होता है उसकी हील बहुत बारीक सी होती है, जैसा भी शूज हो भले, जैसा भी शूज हो उसकी हील बहुत बारीक सी होती है। ठीक है, कुछ और ही बन गया मुझसे यार। ठीक है, कुछ इस तरह का शूज होता है, लेट सपोज, जैसा भी है। और एक हम लेते हैं स्नीकर्स। स्नीकर्स में क्या होता है, फ्लैट सोल, है ना। उसका शूज जैसा भी होगा उसका सोल हमेशा एक ही जैसा होगा, फ्लैट। व्हाट डू वी सी, सरफेस एरिया कम कहाँ पर है, यहाँ पर, ये यहाँ पर। ऑब्वियसली बात है हील्स में सरफेस एरिया बहुत ही कम होगा। इसलिए अगर क्या भाई कभी हमारी कोई सिस्टर या हमारी मम्मा गलती से ये पूरा हील लेकर आपके पाँव पर चढ़ जाए, तो आपके पाँव का ना बड़ा बहुत मजा आएगा आपको, मतलब। ठीक है, क्यों मजा आएगा आप समझ गए होंगे, एरिया कम है। एरिया कम है तो आपको जो पेन होगा उस क्योंकि से प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसमें पेन बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर ऐसा फ्लैट सोल होगा बिल्कुल, और वो चढ़ भी जाए, तो कैसा है, फ्लैट, तो सरफेस एरिया इसका डिस्ट्रीब्यूटेड है, बड़ा है, तो प्रेशर भी डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली होगा सब तरफ, है ना। तो यहाँ आपको पेन कम होगा, इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर कम है। क्यों? लार्जर सरफेस एरिया, लेस सरफेस एरिया। ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल बेसिक है, कोई लॉजिकली बहुत डिफरेंट बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे मुझे मिल जाए हैमर, क्या मिल जाए मुझे, हैमर, और मुझे क्या ठोकनी हो, कील ठोकनी हो, अ नेल। तो ये नेल की जो सरफेस एरिया होता है वो इतना बारीक सा होता है, और ऊपर होता है कैप। ठीक है, ऐसे ही होता है ना भाई। ये मुझे कील कहाँ ठोकनी है भाई, यहाँ मेरी वॉल है रेड कलर की, नीचे ऐसे उस पर ठोकनी है। और ऊपर कौन है इसमें, ऊपर जो इस पे हिट कर रहा है वो है एक लंबा सा भारी सा हैमर। ठीक है, हम हैमर से इसको हिट कर रहे हैं। अब जरा मेरी बात पर तवज्जो दीजिएगा, बहुत जरूरी है बात ये जो मैं कहने वाला हूँ अभी। यहाँ भी प्रेशर है और यहाँ भी प्रेशर है, एक P1 हो गया, एक P2 हो गया, है ना। ज्यादा प्रेशर कहाँ है, P1 पर या P2 पर, कौन बताएगा, who will tell me, where will we observe more pressure? P2 exactly, but what's the reason, P2 पे more pressure क्यों है, वजह क्या है, more pressure क्यों, less surface area। सही बोला, यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा है ना, कैप, जो नेल कैप है वो बड़ा है ना, तो वहां लेस प्रेशर। क्यों? बिकॉज ऑफ द मोर सरफेस एरिया। समझ में आ गई वाली बात? एग्जैक्टली बेटा वानिया, वेरी गुड मेरा बच्चा।
तो यहाँ तक इस बात को समझने में। सर तो P2 में ना जो फोर्स की जो कंसंट्रेशन है वो ओवर द लेस सरफेस एरिया, जिसकी वजह से ज्यादा यस प्रेशर है। यस, कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स पे जाना है हमने। मोर कंसंट्रेटेड होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, लेस कंसंट्रेटेड होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, ओके हो गया, इजीली समझ में आ गई ये बात। देखो गौर से देखो इन दोनों एग्जांपल्स को, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2, बोथ ऑफ दीज आर शोइंग ऑन योर स्क्रीन एट द टॉप, एट द बॉटम ऑफ द पेज। यहाँ पर क्या हुआ, चेंज क्या आया, यहाँ भी 100 न्यूटन, यहाँ भी 100 न्यूटन, वेट तो सेम ही है, सरफेस एरिया में चेंज आया, सरफेस एरिया 5 टाइम्स हो गया है ना, सरफेस एरिया 5 टाइम्स हो गया, बढ़ गया ना। तो देखो प्रेशर क्या हुआ, वो 5 टाइम्स कम हो गया, 5000 से 200 रह गया। ठीक है, 5000 जितना भी 50,000 जितना भी कम हुआ वो कम हो गया, तो एरिया इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो गया। यहाँ तक कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना। यहाँ तक कोई मुश्किल बात नहीं है, इजीली प्रेशर, सॉलिड का प्रेशर इजी होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई फोर्स कंसंट्रेटेड है या लेस कंसंट्रेटेड है, मोर कंसंट्रेटेड मोर प्रेशर, लेस कंसंट्रेटेड लेस प्रेशर। नाउ वी आर मूविंग टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, atmospheric pressure is totally linked with the gases, है ना, because our environment is the mixture of the multiple type of gases। तो गैसेस के मिक्सचर को कंबाइन कर लें तो हमारा एटमॉस्फेयर बन जाता है ना, उसमें डस्ट भी है, उसमें गैसेस भी हैं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, आपको पता ही है। सो एयर मॉलिक्यूल्स आर कंटीन्यूअस इन द रैंडम मोशन, वो कभी भी एक जगह नहीं बैठते हैं, कम मुसलसल गैस के मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं। हम ये काम ब्राउनियन मोशन में पढ़ेंगे आगे, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में बहुत ज्यादा लिंक्ड है प्रेशर से। ठीक है, तो मुसलसल दे कीप ऑन मूविंग इन द रैंडम डायरेक्शन एंड दे कीप ऑन कोलाइडिंग among each other, and if they are closed in a container so they will keep on colliding with the walls of the container। ठीक है, so when they collide with one another and with the walls of the container या with the walls of object कह लें, so when they collide, so what do we do, they apply force, they exert a force। भाई for example ये देखें, कुछ इसको समझें, ये मैं हूं और ये पीछे से हमारे हमजा भाई आ गए, हमजा भाई थोड़े हेल्दी हो गए और ऐसा आके टकरा गए, क्या होगा, हमजा भाई टकराएं, क्या एक्सर्ट क्या होगी, फोर्स एक्सर्ट होगी, कोई टक्कर आके लगी मेरे पास। ठीक है, क्या लगी आके मेरे पास, फोर्स आके लगी, टक्कर लगी, तो उससे क्या होगा बेटा, अब फोर्स मेरे पूरी बॉडी पे तो नहीं लगी ना, ऑब्वियस सी बात है, दे विल बी अ स्पेसिफिक, दे विल बी अ स्पेसिफिक एरिया। लेट्स सपोज यहाँ लगी टक्कर भाई, कहना कि यहाँ पर आकर, ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा। सर आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मेरा इंटरनेट चला गया था, आप वापस से एक्सप्लेन कर मैं देंगे बस ये एयर कह रहा से। हूँ, मैं कह रहा हूँ ये मैं हूँ, ये हमजा भाई आप है, ठीक है, और क्या हुआ इसमें, हमजा भाई ने आके टक्कर मार दी पीछे से मुझे, ऐसे आए इस डायरेक्शन में और कोलिजन हो गया। क्या हो गया बेटा, कोलिजन हो गया। जब कोलिजन हुआ तो ये मुझ पर आके अप्लाई हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में ही कोई ना कोई फोर्स भी अप्लाई होगी। तो हमजा एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन एहतिशाम ऑन अ स्पेसिफिक एरिया, शोल्डर पे टक्कर हुई भाई, यहाँ पे शोल्डर होता है नेक के बाद, शोल्डर पे टक्कर हो गई, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, कोलिजन के बाद क्या होगा, सर मैं आपके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करूंगा। एक्सर्ट करेंगे तो मैं किसी और डायरेक्शन में आगे मूव करना स्टार्ट कर दूंगा, मैं ऐसे आगे जाना स्टार्ट कर दूंगा, सही बोला है ना भाई, मैं क्या करूंगा, ऐसे आगे जाना स्टार्ट कर दूंगा। यस ठीक है, सर। क्योंकि मैं ऐसे जाना स्टार्ट कर रहा हूँ उसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ या डिस्टेंस कवर किया तो क्या हो गया, मेरा वर्क डन हो गया। तो एक फोर्स प्रेशर लगने से वर्क डन करवा रही है, वही फोर्स प्रेशर लगने से कोलिजन करवा रही है, वही फोर्स प्रेशर लगने से कोलिजन होने से एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रही है तो वर्क डन हो रहा है, और वही फोर्स जो टकराई तो उससे इस वाली एनर्जी पहले वाले की एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से मुझ में एनर्जी का हो गया इंक्रीज, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मुझ में आके हो गई कन्वर्ट, और मैंने आगे मूव करना स्टार्ट कर दिया तो मेरी एनर्जी कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक मेरी इंक्रीज हो गई, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई डिक्रीज। ये सारी चीजें एक ही साथ साथ चलती हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सब सिनेरियोज किसी ना किसी तरह फोर्स की वजह से इंटरलिंक्ड है। यही सब कुछ मेरे एनवायरमेंटल प्रेशर में होता है। When two molecules of the gas या air collide among each other, so that they exert a force
and that force specifically applies over a specific area of the molecule, which causes the change in the atmospheric pressure. ठीक है? The atmospheric pressure is always measured at the sea level. मतलब हम जितने भी हाइट पर जाते जाएंगे, जितनी मेरी हाइट बढ़ती जाएगी, प्रेशर में उतना ही चेंज आता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सर पानी है भाई, प्रेशर ये मेरा डिक्रीज होता जाता रहेगा ना ऊपर जाने से? बिल्कुल बिल्कुल. अब देखो ना, अब जरा गौर कीजिएगा. मैं आराम से समंदर के यहाँ ऊपर सरफेस पे आराम से फ्लोट कर रहा था. मुझे सांस भी ठीक से आ रही थी, मैं स्विमिंग भी कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था. कहाँ? टॉप पे, यहाँ पे. इवन मैं लेट गया ऐसे करके, कोई मसला नहीं हुआ. लेकिन जब नीचे आए तो डू यू नो कि जो डेंसिटी ऑफ सी वाटर है वो सरफेस पे अलग है और डेप्थ में अलग है. किसी ने बताई आपको ये बात? आई थिंक बहुत कम बच्चों को पता होगी. क्यों ऐसा? सर जियोग्राफी में पढ़ा तो है. क्या बात है, जबरदस्त. बहुत कम बच्चों को पता होगी ये बात. क्योंकि ऐसा क्यों है? अगर आपको पता हो कि जो एयर मॉलिक्यूल्स है ना ऊपर सरफेस पर, या वाटर मॉलिक्यूल्स है ना ऊपर सरफेस पर, वो सिर्फ वो हैं जिनका मास बहुत सारा कम है. जो मोर मैसिव है वो नीचे की तरफ है. सही है. और यही हवा के साथ है. जो लेस डेंस मॉलिक्यूल्स हैं, जी बिल्कुल 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 सही कह रही है वानिया. वेरी गुड, अच्छी पिक्चर भेजिए बेटा. सर इस पास्ट पेपर्स में एक ऐसा क्वेश्चन है प्रेशर का, एंड इट आस्क व्हाई द वाटर फ्लोज आउट ऑफ टैंक इन द स्ट्रेट लाइन. अभी बताता हूं ना बेटा, वो राइट एंगल वाली बात है. अभी आते हैं इसके ऊपर. अभी वाटर की बात आई ना, फिर आते हैं. ठीक है. तो ऊपर जितने ये मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डेंसिटी कम है, तो इसीलिए वो मॉलिक्यूल्स हैं भी कम ही, आप देख सकते हैं. ठीक है. नीचे आ गए तो ज्यादा डेंसिटी होने की वजह से वो हैवी हैं, और यहाँ पर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगा. जितनी हाइट पे जाते जाएंगे, इफ यू हैव एवर विजिटेड नॉर्दर्न पाकिस्तान, ठीक है, अगर हम इफ यू हैव एवर विजिटेड नॉर्दर्न पाकिस्तान, तो बेटा व्हाट विल हैपन, हम जितनी हाइट पे जाते हैं वहां पे प्रेशर में हमें सांस लेना उतना ही कम हो जाता है. बिकॉज ऑफ द लेस प्रेशर. वहां के डेंसिटी ऑफ द एयर जो है वो और ज्यादा कम है, लेस डेंस है. ठीक है. सेम हैपेंस, यही हमारे साथ होता है हमारे एनवायरनमेंट में. हम समंदर के पास वाले एरिया, वी मोस्ट ऑफ अस आर रिजाइडिंग नियर कराची या इन कराची, व्हिच इज इन पैरेलल विद द सी लेवल. बल्कि सी लेवल हमारे जमीन से ऊंचा ही होता है. ठीक है. जमीन हमेशा नीचे होती है, सी ऊपर होता है करीब वाले पार्ट में. तो कराची सी लेवल के साथ ही या फिर कुछ नीचे होगा छोटा मोटा. तो दैट इज व्हाई द डेंसिटी ऑफ द एयर इज क्वाइट हाई. और वो हमें कैसे पता है? क्योंकि यहाँ कराची में सिर्फ डेंसिटी का अंदाजा किस चीज से आता है? ह्यूमिडिटी लेवल से. यहाँ पे ह्यूमिड एयर बहुत ज्यादा, मींस द मॉलिक्यूल्स आर डेंस. ठीक है. मोबाइल ग्रेविटी तब अफेक्ट करेगी बेटा व्हेन देयर विल बी डेंस एयर मॉलिक्यूल्स. जितने ज्यादा डेंस एयर मॉलिक्यूल्स होंगे उतना टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, तो वो नीचे रहेंगे. लेस डेंस होंगे तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अभी हम पढ़ेंगे, और फिर वो ऊपर जाएंगे. ठीक है. अभी आते हैं इस पर. तो ये वाली बात है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. ये सर एक्यूरेट ये वैल्यू चीज आती हम है हमें. थर्मल फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, कि अरे जो लेस ये डेंस एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर चले आते हैं, क्योंकि वो हाँ बेटा, हीटेड होते हैं, अवे ये फ्रॉम ईच अदर होते ये हैं. सारा वही वही लिंक कनेक्ट होगा. अभी सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे, सारा वही लिंक कनेक्ट होगा. ये एनर्जी से लेकर पूरा थर्मल कंबाइंड है. फिर इलेक्ट्रिसिटी में आएगा पावर, एनर्जी, सब कुछ दोबारा. ठीक है. वेव्स में कम आएगा, बहुत ही कम होने के बराबर. तो फिर भाई व्हाई डज द एटमॉस्फेयर डिक्रीज विद द हाइट? ये क्वेश्चन दिमाग में आया ना भाई. व्हाई डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद द हाइट? सबको पता है, जितनी हाइट बढ़ती जाएगी तो लेस मास, जिसका मास कम होगा वही चीज ऊपर जाएगी. क्योंकि लेस मास होगा तो मास के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरी डेंसिटी. डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. तो मास अगर लेस हो गया तो डेंसिटी भी लेस. रिजल्ट्स इन मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाएंगे? ऊपर, और बहुत दूर दूर, और जहां नीचे बहुत करीब करीब और बहुत ज्यादा. ठीक है. जब डेंसिटी लो हो जाएगी एयर की तो मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे. ऑब्वियस सी बात है, व्हेन दे आर लीस्ट इन क्वांटिटी, so the movement or the speed of the molecule will also be very less, which means there will be very or less collision, which are there will be less collisions. Less collision result in less force exerted on the molecules, which is why the low air density causes the less atmospheric pressure or the decrease in the atmospheric pressure as soon as the height is increased.
द सेकेंड इज लो टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना कम होता जाएगा काइनेटिक एनर्जी उतनी कम होती जाएगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तभी तो टेम्परेचर थर्मल में कन्वर्ट होती है। तो अगर थर्मल एनर्जी ही कम होती जा रही है तो टेम्परेचर कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। एंड डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी रिजल्ट्स इन स्लो मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि स्पीड कम काइनेटिक एनर्जी कम, ठीक है। which means there will be less force exerted on the molecules, बहुत कम फोर्स लग रही होगी। तो दोनों बार लेस फोर्स होने का रीजन लेस कोलिजन और स्लो मोशन, ठीक है। एक बार कब डेंसिटी कम हो गई, दूसरी बार टेम्परेचर कम हो गया। भाई टेम्परेचर कम होगा तब भी तो डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। हाँ पता है बात, इसलिए लेस डेंस मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाएंगे, जब प्रेशर कम हो गया उनकी डेंसिटी कम हो गई, दूर दूर चले जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। दिस इज द रीजन, द लो टेम्परेचर causes the decrease in the atmospheric pressure as it causes the increase in height। सही हो गया। ये वो बात है जो वानिया हमारी बेटी हमसे भी पूछ रही थी मीटिंग चैट में। बेटे मेरी बात सुनिएगा बहुत गौर से। मैंने एक कंटेनर लिया और इसमें मैंने ब्लू ब्लू से शेड हुआ ना सारा पानी भर दिया। What did I fill in that? I filled the water in the container. And then what did I do? I'm going to draw few holes. मैंने 3 holes कर दिया पिंक वाले, ठीक है मेरा बच्चा। How many holes I have made? I have made 3 holes in the container at different heights। एक बिल्कुल बेस में यहाँ पर ये वाला, एक ऑलमोस्ट मिडिल में और एक ऑलमोस्ट टॉप पर, ठीक है। जरा गौर से बताइए, ग्रेविटेशनल पुल ये वाला है ना, डायरेक्शन तो यही होगी, ये नीचे एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, और जैसे होल किया तो पानी नीचे नहीं जाएगा, पानी कैसे जाएगा, एट द राइट एंगल। कैसे जाएगा, और राइट एंगल के बाद आके कर्व होगा कुछ ऐसा, ठीक है। सेकंड वाले से कुछ ऐसा होगा, ठीक है बेटे, पानी इतनी दूर जाके गिरेगा, रीजन। और जो सेकंड वाला है उसका जो वाटर फ्लो होगा वो भी शुरू में तो राइट एंगल ही होगा, शुरू में सीधा जाएगा, शुरू में तो राइट एंगल ही होगा, शुरू में थोड़ा सीधा जाएगा, और उसके बाद ग्रेविटी कैसे वो भी नीचे गिर जाएगा जब उसकी फोर्स कम हो जाएगी। और थर्ड वाले की फोर्स सबसे कम, ठीक है। तो व्हेन द वाटर फ्लोज आउटसाइड of the container it will make a perpendicular, मतलब हमेशा flow of water will always be perpendicular to the pressure। बिल्कुल डाउन हाईएस्ट प्रेशर, एग्जैक्टली। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों है, बिकॉज सुनिएगा मेरी बात गौर से दोबारा, मैं कह रहा हूं प्रेशर इंक्रीजेस विद द डेप्थ। क्या बोला मैंने, प्रेशर increases with the depth। अभी से कुछ साल पहले अगर याद हो तो दो बंदे थे, बाप और बेटा, और वो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए पानी की गहराई में गए थे। अभी आते हैं मोबाइल, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फॉर्मूला बड़ा आसान सा, ठीक है। तो वो पानी की गहराई में बड़े डेप्थ में गए थे, क्या देखने के लिए, टाइटैनिक का मलबा, ठीक है। कुछ याद है किसी को, बाप और बेटा दो में लोग मिल गए थे, उसका नाम था ओशियन गेट। जिस वाटर सबमरीन में वो गए थे उसका नाम था ओशियन गेट। ओशियन गेट वालों ने जब उनको उसमें बंद करके भेजा, 5 लोग थे उसमें, 2 लोग तो बाप और बेटा थे, 3 लोग और थे, 5 या 6 लोग, ठीक है। ओशियन गेट में जब वो पानी में गए तो सुना, फॉर एग्जाम्पल ये भाई वो पैसिफिक ओशन है, डीपेस्ट ओशन, समझ लो कुछ ऐसी डेप्थ है उसकी, ठीक है। जब वो ओशियन गेट को अपने यहाँ से ऐसे इस शेप की थी, थोड़ी सी ओवल शेप की, वो पानी में लेके गए उसको, पानी में ले गए, यहाँ तक गए बिल्कुल सही था, यहाँ तक गए बिल्कुल सही था, और नीचे गए तो उसकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो गई, उसकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो गई, और वो हॉरिजॉन्टली मूव ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि उस पर प्रेशर अप्लाई होना शुरू हो गया पानी का,
भाई अभी तो मैं कह रहा था प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ, मैं तो डेप्थ में गया ही नहीं, तो इसने हॉरिजॉन्टली मूव करना कैसे स्टार्ट कर दिया? क्योंकि प्रेशर डेप्थ में तो जा रहा है, ये बात सही है, समझ में आ गई आपको, बट प्रेशर एक्ट्स इन ऑल द डायरेक्शंस इक्वली। दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने? पहला पॉइंट तो आपको मेरा बहुत अच्छे समझ में आ गया कि प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ, और नंबर 2 है बेटा मेरा कि प्रेशर इन लिक्विड, लिक्विड की बात हो रही, जरूरत नहीं लिखने की, लिक्विड और गैसेस फ्लूइड्स की बात हो रही है। प्रेशर एक्ट्स इन ऑल द डायरेक्शंस, या फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन कहते हैं, इन भी और फ्रॉम भी, ऑल द डायरेक्शंस इक्वली, सब तरफ से बराबर का प्रेशर लगता है। तो इसका मतलब ये जो सब ओशियन गेट अंदर गई थी, इस पर यहां से भी प्रेशर लग रहा है, 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 सब तरफ से इसके ऊपर बराबर का प्रेशर अप्लाई होना शुरू हो गया। सही है, इसने बर्दाश्त किया, उसकी सरफेस इतनी स्ट्रांग थी कि इस प्रेशर को बर्दाश्त कर ले। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने ये डेप्थ इंक्रीज की, कहाँ जाना शुरू कर दिया उसने? इस डेप्थ में यहाँ के बजाय मजीद नीचे आना स्टार्ट कर दिया। क्या कहा मैंने? उसने इस डेप्थ में यहाँ से मजीद नीचे आना स्टार्ट कर दिया, और जब वो ऑलमोस्ट कोई 600 मीटर से ज्यादा नीचे आ गई, तो प्रेशर इतना बढ़ गया कि ये सरफेस जो थी ओशियन गेट की could not bear the pressure from the liquid या वाटर। क्यों? प्रेशर नीचे गहराई में आने के बाद मजीद बढ़ गया डेंसिटी की वजह से। मोर डेंस वाटर इज एट द बॉटम ऑफ द सी, है ना, सी बेड तो बड़ा खतरनाक है, वहां प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो भी इतनी ज्यादा गहराई में है, और फिर इक्वली सब डायरेक्शन से प्रेशर अप्लाई भी होता। क्या हो गया वो, क्या हो गया, वो जो मेरी ओशन गेट थी क्या गई, कोलैप्स कर गई, कोलैप्स कर गई, टूट गई, अंदर जो लोग थे वो टूट के बिल्कुल खत्म हो गए, बर्बाद, कि किसी और चीज तक खाना तो दूर की बात, वो बिल्कुल टूट टूट के कई पीसेस में डिवाइडेड हो गए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कि प्रेशर का ये कंडीशन है। अब प्रेशर अप्लाई होने में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आए, प्रेशर अप्लाई होने में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आ गई, ताकि हम फॉर्मुलेशन को समझ सकते हैं। फॉर्मुलेशन में क्या क्या मेरे पास, जरा बताइए भाई, गहराई बढ़ी तो मतलब क्या बढ़ी? डेप्थ बढ़ गई, है ना? एज आई टोल्ड यू, प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, ठीक है, और जितनी डेप्थ में आए उतनी डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है, तो डेप्थ के लिए सिर्फ डी लगाया था, और डेंसिटी के लिए रो, और ये नीचे आ क्यों रही है? ये रो का सिंबल आ गया नीचे, एक्ट कर क्यों रही है? ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है, तो रो जी डी लगाएं अगर डेप्थ की बात हो रही है, और अगर हाइट की बात हो रही है तो इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं रो जी एच। क्या लिख सकते हैं इसी फॉर्मूला को बेटा आप? रो जी एच। रो मतलब डेंसिटी, रो मीन्स डेंसिटी, और ग्रेविटी, और हाइट, तो दोनों बातें एक ही हैं, इस बात में आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ बेटा, वानिया बेटे और मुवाहिद बेटा, यहाँ तक कुछ ऐसी बात जो समझ में नहीं आई हो? आप दोनों चीजें पूछे थे, हमजा भाई और बाकी सब बच्चे, क्लियर है? सर वो आपसे एक चीज पूछनी थी, तो इस कंटेनर में अगर मैं होल बनाऊंगा, तो इस होल में से जो वाटर जो फ्लो होगा, उसका जो फ्लो होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू द प्रेशर ऑफ द वाटर। परपेंडिकुलर होगा बिल्कुल, पहले तो परपेंडिकुलर, देखो इनिशियल तो परपेंडिकुलर है, बाद में आगे डायमेंशन चेंज हो रही है ना, क्यों? ड्यू टू द ग्रेविटी। तो इसका पूरा कंप्लीट आंसर क्या होगा? When the water is spilled from the container due to a direction of pressure, the flow of water will be perpendicular, ठीक है, the flow of water will be perpendicular to the pressure। सही है, बस इतना ही होगा। बेटा क्या कहते हैं अलीजा, डी फॉर डेंसिटी नहीं है, डेप्थ, डेप्थ है, डी फॉर डेप्थ। डेंसिटी के लिए ये सिंबल लगाया है रो, ये कुछ कुछ पी की जैसा होता, पी नहीं होता, इसको हम रो पढ़ते हैं, ठीक है। The gravitational pull increases with depth
which increases the pressure. As the pressure distributes equally, the water flowing out represent the force and pressure at the correct current path. हाँ, according to the question बिल्कुल सही है बेटा। वानी according to the question मेरी बेटी बिल्कुल सही है मेरा बच्चा। ठीक हो गया, समझ में आई बात? गुड। अच्छा जी, अब आते हैं बैरोमीटर पे। बैरोमीटर बड़ा ही सारा सा इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। इन द बैरोमीटर वी टेक अ टब। टब ना बोले तो ओपन कंटेनर कहते हैं। And an inverted tube is placed on it. कौन सी ट्यूब? इन्वर्टेड ट्यूब। कभी सुना है इन्वर्टेड ट्यूब क्या होता है? इन्वर्टेड ट्यूब मतलब अपसाइड डाउन, जो नीचे से ओपन हो ऊपर से क्लोज हो। आप देख सकते हैं इन्वर्टेड है, ऊपर से क्लोज है नीचे से ओपन है। वी फिल्ड दिस ओपन पैन विद द मर्करी। क्या भर दिया हमने ऐसा? मर्करी। कुछ सेकंड्स वेट किया हमने मर्करी भरने के बाद। ऑटोमेटिकली मर्करी ने अपनी हाइट चेंज करना स्टार्ट कर दी। पहले वो यहाँ तक था, फॉर एग्जांपल यहाँ तक, और अब 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट्स के बाद हाइट यहाँ आ गई। व्हाट डू आई ऑब्जर्व कि मेरी हाइट क्या हो गई बेटा? चेंज हो गई। व्हाट डू आई ऑब्जर्व? आई ऑब्जर्व कि हाइट चेंज, और ऊपर वैक्यूम होगा। तो ऐसी बात है, ऊपर से गैस तो नहीं बचेगी ना भाई, ऊपर तो वैक्यूम बचेगा, है ना? ऊपर एक वैक्यूम बच गया, मतलब एम्प्टी पार्ट। तो द चेंज इन हाइट, हम सिर्फ चेंज निकालेंगे हाइट का, और ग्रेविटी हमें ऑलरेडी पता है, सही है, और डेंसिटी हमें मर्करी की क्वेश्चन में गिवन होती है। हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आराम से हमारा काम बन जाएगा। हम तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। भाई लेट सपोज डेंसिटी 760 है, लेट सपोज, पता नहीं कितनी होती है, क्वेश्चन में गिवन होती है आपको, ग्रेविटी 9.8, और लेट सपोज हाइट में चेंज आया है वो 2 सेंटीमीटर का आया फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 डिवाइड बाय 100 ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। लीजिए आपका चेंज इन प्रेशर मिल गया। सर तो इससे हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाएगा। बिल्कुल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों मिलेगा? सवाल तो ये है ना, मिलेगा तो सही, लेकिन सर इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मिला? सुनिए मेरी बात बेटा। मरकरी को किसने कहा कि वो ट्यूब के अंदर ऊपर चढ़ता जाए? why did the mercury inclined in the inverted tube? Because the pan is opened or exposed to the atmosphere at these sides, है ना? ओपन है ना, तो यहाँ मेरा क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ अप्लाई होगा। जब यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होगा तो ट्यूब के अंदर मरकरी ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देगा। जितना ज्यादा बाहर से प्रेशर यहाँ से अप्लाई होगा, ये दोनों तरफ से, उतना ही मरकरी ऊपर जाएगा। जितना मरकरी की हाइट में चेंज आएगा, वो हाइट किसकी वजह से आया है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आया है। एंड दैट्स हाउ वी यूज द एंड दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप बताइए क्या मुश्किल लगा या क्या समझ में नहीं आया? अब एक बार इसको पढ़ के भी देख लें ताकि समझ में आ जाए। पूरा पढ़ लें, पूरा पेज, बैरोमीटर वाला पूरा पेज, राइट साइड लेफ्ट साइड सारा अच्छी तरह। कंस्ट्रक्शन भी देखिएगा, राइट साइड पे डायग्राम्स है, उनमें एक लेफ्ट बॉटम वाली वो पतली हो गई है, उससे डिफरेंस क्या आएगा ये भी देखिएगा। ठीक है, हाँ जी, एनी क्वेश्चन?
क्वेश्चन है इसमें बेटा, मैंने कहा था पढ़ लो एक दफा ना, ताकि समझ में आ जाए सारी चीजें। सर एक basically मिनट सर, मरकरी ये जो ट्यूब है इसके अंदर मरकरी का जब हाइट इंक्रीज होगी तो इसका मतलब कि बाहर ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना? देखो मरकरी तो अपने लेवल पे ऑटोमेटिकली इस पैन में हमने डाल दिया, वो फिल हो गया है ना। छोटी मोटी हाइट होगी ट्यूब का, थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा, लेकिन जब जहाँ पे एरोज लगे ना ब्लैक वाले, देखो जहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर लिखा हुआ PATM है ना, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारी एयर का प्रेशर मरकरी का अप्लाई होगा ना, एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट, एक्सपोज्ड है ना, खुला हुआ है। तो ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, ऑटोमेटिकली ये अप्लाई होने की वजह से मेरी जो हाइट है मरकरी की, वो इन्वर्टेड ट्यूब में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो साइड से प्रेस करेगा एनवायरनमेंट, तो ऑटोमेटिकली ट्यूब में ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे जितनी हाइट का चेंज आएगा ना इनिशियल से फाइनल तक, लेट्स सपोज मैं 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया उसको, तो 10 मिनट्स मतलब 600 सेकंड्स के लिए उसको मैं छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जब चेक किया तो द चेंज इन द हाइट विल बी नोटेड डाउन, और जितनी हाइट का चेंज आया वो किसकी वजह से आया है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने हमारे को प्रेस किया, और प्रेस करने की वजह से उसकी हाइट अंदर बढ़ गई। So that's how we use that height in our formula for the density into gravity into height to calculate the pressure of the gases and liquids both. Mercury is the only liquid metal, तो हमें liquid से pressure of the atmosphere मिल जाएगा। ठीक है, इसी वजह से हम जब ज्यादा हाइट पर चले जाते हैं तो हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है, इट्स रियली डिफिकल्ट। तो दो वजूहत होती हैं, जितनी हाइट पे हम जाते हैं, तो एक तो ऑलरेडी सर हमारा आपकी बर्न वॉइस बहुत स्लो आ रही है, सॉरी टू कट यू, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है, या तो आप बहुत पीछे से बोल रहे हैं। एक मिनट, अब आ रही है आवाज सही? जी सर अब सही आ रही है। अब क्या है बेटा कि अब जब मैं ऊपर की तरफ गौर से देखो, अगर हम कभी माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं तो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए हमें क्या लगता है, बिकॉज हम हाइट कवर कर रहे हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, इसलिए हमारी सांस फूल रही है। जो ग्राउंड रियलिटी है ना, वो ये वजह है लेकिन पूरी नहीं है। जो बाकी वजह है वो क्या है, जितनी ज्यादा माउंटेन क्लाइंबिंग आप जितनी ज्यादा हाइट पर जाते जाएंगे, आपकी सांस लेने में आपको मुश्किल होगी। वजह, because at high altitudes the atmospheric pressure is quite less as compared to the value of the atmospheric pressure at the sea level. That is why we feel suffocated, हमें घुटन फील होती है, सांस लेने में मुश्किल होती है, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, और हमारी बॉडी का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो अगर हम हाइट पर जाते हैं तो हमारी बॉडी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में मुश्किल होती है, हमें जोर से खींच के सांस लेनी पड़ती है। दैट इज द रीजन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा चेंज हमें फील होता है, विच इज वाई हमारी सांस तेज हो जाती है। ठीक है, अगर हमें अपनी रीडिंग को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करते वक्त बैरोमीटर की रीडिंग को बहुत ज्यादा एक्यूरेट रखना है, तो व्हाट वुड आई डू, आई एम गोइंग टू टेक द इन्वर्टेड ट्यूब विच इज क्वाइट थिन, जिसके बीच में स्पेस, जिसका जो वो है ना, जो कहते हैं थिकनेस, वो बहुत ही कम है। जैसे कि बॉटम राइट में आप देख सकते हो, थिकनेस जो है वो बहुत कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली सेम लेवल आ गया, ऑटोमेटिकली सेम लेवल आ गया। तो थिकनेस या डायमीटर जो है ना ट्यूब का, उससे मेरे मरकरी के लेवल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा। क्यों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा भी पुश करेगा उसको, तो पतली होने की वजह से उसकी हाइट ज्यादा नजर आएगी। लेकिन व्हाई डू आई डू दैट, मैं उसकी पतली या बिल्कुल थिन वाला ट्यूब क्यों लेता हूँ, ताकि स्केलिंग करने में आसानी हो, क्योंकि रीडिंग्स के बीच में बड़ा बड़ा डिफरेंस होगा, तो मुझे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी मेरी हाइट चेंज की। ठीक है, द चेंज इन हाइट कैन इजीली बी ऑब्जर्व इन अ थिनर इन्वर्टेड ट्यूब। सही हो गई बात? ठीक है, लिक्विड्स का प्रेशर अब आपको मैंने पूरा समझा ही दिया है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसकी एग्जांपल देख लें, फॉर्मूला वही सेम है, रो जी एच। जरा एग्जांपल डाउन देयर इज एग्जांपल, जस्ट लुक इनटू इट। ये पूरी एग्जांपल राइट साइड पर सॉल्व हुई थी आपके ए और बी पार्ट करके, बिल्कुल ऊपर। एक बार रिव्यू कर लें और मुझे बता दें कि कुछ ऐसा समझ में नहीं आया। ऑल क्लियर? समझ में आ गया अच्छी तरह से? ठीक है, अच्छा एक बात हमेशा रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू थ्रो अ मेटल बॉल इन अ टब ऑफ वाटर। मैंने टब ऑफ वाटर में एक मेटेलिक बॉल फेंक दी, क्या होगा, वो मेटेलिक बॉल फौरन से पानी के अंदर चली जाएगी, है ना। कंसिडरिंग दैट कि वो वाटर की हाइट लेट्स सपोज 2 मीटर्स है, ठीक है,
और डेंसिटी ऑफ द वाटर, जो प्योर वाटर की डेंसिटी वो है 1000 किलोग्राम पर मीटर की। ठीक है, तो ये सब रख के अगर कोई मुझे बोले कि टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर लें तो हम क्या करेंगे? रिमेंबर दैट जब भी टोटल प्रेशर की बात आएगी बेटा, तो टोटल प्रेशर का मतलब है प्रेशर ऑफ द वाटर दैट एक्सर्टेड ऑन द मेटल बॉल प्लस प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, दोनों को ऐड करेंगे। रीजन, क्योंकि बेटा वाटर जो मैंने बकेट में रखा हुआ है वो एक्सपोज टू द एनवायरमेंट है ना, बर्तन मेरा खुला हुआ है ना जिसमें पानी भरा हुआ है मैंने बेटे, बिकॉज द वाटर इज एक्सपोज टू द एनवायरमेंट, so obviously the atmospheric pressure is also exerting on the surface of the liquid, and I have thrown the ball in the liquid. So now the metallic ball has two different pressure. You're taking up two different pressures. कौन से? The pressure of the water and the pressure of the atmosphere. तो इस कंडीशन में जब भी आपको टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने का कहेंगे, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जब भी आपको टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने का कहेंगे तो आप दोनों प्रेशर ऐड करेंगे। सही है, दोनों प्रेशर क्या करेंगे? आप ऐड करेंगे। एज यू कैन सी, देख सकते हैं आप, मैंने ये लगाया हुआ है रो जी एच और ये मैंने लगाया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड किया हुआ साथ। क्यों? क्योंकि टोटल प्रेशर चाहिए था मुझे। टोटल प्रेशर का मतलब समझ गए? ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है मुझे, और मेरी एक्स ऑब्जेक्ट है तो इसकी 220 मीटर्स की डेप्थ पर भी काम हो रहा है। तो आप इस तरह पूरा प्रेशर निकालेंगे। जैसे ये बॉल, the pressure increases with depth, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। प्रेशर एक्ट्स इन ऑल द डायरेक्शंस इक्वली, ये वाली बात भी मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर पढ़ा दी है, जिससे आपको देख के ये इजीली समझ में आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है दो डिफरेंट डेप्थ होती है कि पहले ऑब्जेक्ट यहाँ थी 10 मीटर्स पे, 15 मीटर्स पे आ गई। एंड नाउ व्हाट वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट, वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट चेंज इन द प्रेशर। सो व्हाट डू वी डू? कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना आपने, सिर्फ हाइट का डिफरेंस निकाल के रख देना है। ये इतना लंबा सोल्यूशन होता है इसका, तो आपने कोई काम ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ हाइट का डिफरेंस रख के रो जी एच में रख देना है। 15 माइनस 10 5, तो आपको चेंज इन प्रेशर मिल जाएगा। तो टोटल प्रेशर और चेंज इन प्रेशर दोनों बातें अच्छी तरह समझ में आ गई हैं? क्लियर हो गई ये बात? कोई मुश्किल है तो मुझसे पूछ लीजिए। टोटल प्रेशर और चेंज इन प्रेशर, हाइट का डिफरेंस आपको समझ में आ गया चेंज में, और टोटल में एटमॉस्फेयर ऐड करना है। ये आपने खुद क्वेश्चन पढ़ के देखना होता है। कभी कभी एटमॉस्फेयर प्रेशर माइनस भी करना होता है जब आपको टोटल प्रेशर गिवन होता है, और आपको सिर्फ उस बॉल का या वाटर का प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो आप एटमॉस्फेयर प्रेशर को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके बेटा, समझ में आ सर गई मेरी बात? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वो क्या थी, वैल्यू क्या थी, आपने बताया नहीं। 1.0 10 की पावर 5 गिवन, हर क्वेश्चन में गिवन होती है। 1.0 10 की पावर 5 हर क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है, लाजमी गिवन होती है। ये है वैल्यू इसकी, कहाँ गई? सही है, ओके हो गया। क्वेश्चन में आपको हमेशा दी जाएगी, याद करने की जरूरत नहीं है, आसान सी, वैसे तो कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि Sir, आपको how is the momentum of gas molecule related to pressure? आएगा ना, देखो फॉर एग्जाम्पल मोबाइल भाई, आई नीड टू फिल गैस in a cylinder. The capacity of the cylinder is 10 kilograms, लेकिन मैंने उसमें 5 kilograms गैस भर ली है। ठीक है, आधा खाली है ना, लेकिन व्हाट डिड आई डू, मैंने वो सिलेंडर ले जाके धूप में रख दिया। कहाँ रख दिया? सनलाइट में। सनलाइट इज व्हाट? इट्स थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या करेगा? सिलेंडर गेन करेगा। सिलेंडर थर्मल एनर्जी गेन करेगा तो कहीं लूज भी करेगा ना, इट विल बी लॉस्ट। कहाँ? इनसाइड ऑफ द सिलेंडर। कौन गेन करेगा उसको? गैस के मॉलिक्यूल्स गेन करेंगे। और गैस के मॉलिक्यूल्स जब गेन करेंगे थर्मल एनर्जी को, मतलब हीट को, तो व्हाट विल हैपन? ओवरऑल देयर काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो सबसे पहले क्या बढ़ेगा? सोच के बताइए। टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो क्या बढ़ा होगा? ऐसा क्या चीज इंक्रीज हुई है जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई? सर उनकी स्पीड। एग्जैक्टली, स्पीड बढ़ी तो जरा सोच के बताइए। हर मॉलिक्यूल का अपना खुद का एक मास है। कोलिजन बढ़ गया सर उनका। बिल्कुल, तो ओवरऑल मोमेंटम इंक्रीज हो गया उसका। क्या बढ़ गया? मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल द गैस हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू राइज इन द एनर्जी, एंड राइज इन द एनर्जी कॉज्ड बाय द चेंज इन द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जब जब बढ़ेगा एनर्जी लाजमी बढ़ेगी, एनर्जी जब जब बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड जब जब चेंज होगी तब तब लाजमी मोमेंटम चेंज होगा। दैट इज व्हाई वी से द चेंज इन मोमेंटम is caused by the change in the pressure in the gases, and it is due to the
चेंज ऑफ द फोर्स. फोर्स कैसे चेंज होगी भाई? पहले कोलिजन के पास एनर्जी कम थी, उनकी स्पीड कम थी, जो कोलिजन हो रहे थे वो बहुत स्लो हो रहे थे, फोर्स बियरेबल थी. अब कोलिजन बहुत जोर से होंगे और बहुत ज्यादा होंगे, देयर विल बी फ्रीक्वेंट कोलिजन, फ्रीक्वेंसी कोलिजन की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. एंड द फोर्स with which the molecule collide with the surface of the container is quite high as compared to previously, है ना, as compared to previous. So now what will happen? The total overall the overall momentum will increase and the force will also increase, which is why इसीलिए हमारे cylinders फटते हैं और हमें चलता नहीं पता. And the basic precaution that we can use in order to avoid this safety hazard is you can cover your cylinder with a wet cloth. गीले कपड़े से सिलेंडर को कवर करते हैं, तो कभी भी थर्मल एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी. वो आएगी तो वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी और उसको गीला कपड़ा एब्जॉर्ब कर देगा जब तक कि वो सूखा नहीं हो जाता. So that is the only way to reduce the collision or to reduce the momentum, ताकि momentum increase ना हो और वो हमारे लिए safety hazard ना बने. ओके हो और गया? सर ताकि ना इनसाइड द कंटेनर जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज ना हो. वो मेंटेन रहेगा. आप गीला कपड़ा बांध के रखें उसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर. ठीक है, सबके घर में सिलेंडर है आजकल, गैस का सबको पता है ऑलरेडी. तो बेहतर है कि अगर आपका सिलेंडर जहां भी रखा हुआ है उस पर एक गीला कपड़ा डाल के रखें, या एक ऐसे टब में या बाल्टी में या किसी बर्तन में उसको रखें सिलेंडर को जिसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ हो. कभी भी अल्लाह ना करे सिलेंडर फटने का मसला नहीं हो सकता फिर उसको. सही है, फाइबर का हो भले या मेटेलिक हो, कोई मसला नहीं. सही है, आगे मेरी बात समझ. आप मुझे बताएं क्या समझ में नहीं आया. अब आपको गैसेस में भी ना इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी. प्रेशर बिफोर और प्रेशर आफ्टर के लिए P1 V1 P2 V2 लगाते हैं. क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना. बिफोर और आफ्टर के लिए P1 V1 P2 V2. इसमें से एक प्रेशर और एक वॉल्यूम बिफोर का और दूसरा प्रेशर दूसरा वॉल्यूम आफ्टर का. इन चार में से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी. बहुत सारे क्वेश्चंस नीचे सॉल्व्ड हैं, ये रहे सारे. कहाँ गए? ये रहे. कुछ क्वेश्चंस कट हुए हैं वो आपने नहीं करने क्योंकि वो मैनोमीटर के, मैनोमीटर सिलेबस में नहीं है. बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं. आपने सारे क्वेश्चन बैठ के रिव्यू करने हैं, पहले एमसीक्यूज और फिर क्वेश्चंस, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आए. और सेफ साइड आखिरी के 3 सवाल आपने लाजमी करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो. ठीक है, एमसीक्यूज सर करें. पहले आप गैस तो हमें समझा दें. क्या समझा दूं? गैस का प्रेशर यही है बस, जो गैस का भी बताया और कुछ भी नहीं है. एग्जैक्ट वाला बात पढ़ो, ये पढ़ के देखो, सब कुछ पढ़ा दिया. ये रेड वाली राइटिंग सारी पढ़ो, समझ में आ जाएगी मेरी बात. तो भी सिलेंडर की एग्जांपल देके पढ़ाया मोमेंटम तक के लिए, वो यही तो है बेटा. ये सारी यही चीज है, पढ़ो एक दफा रीड आउट कर लो जल्दी से. शाबाश. Sir, in equation in Boyle's law, why is we written with P1 V1 multiply? Sorry, can you please repeat the question? Sir, in Boyle's law, the P1 and V1 are written together. Shouldn't they be written in the fraction form? Yes. नहीं, क्योंकि k कांस्टेंट होता है ना दोनों का. मुझे क्वेश्चन सही समझ में नहीं आया, क्या पूछ रहे हो? आई डिड नॉट सर गेट वो द क्वेश्चन. पूछ रहे हैं कि जो बॉयज लॉ है उसके अंदर हम प्रेशर और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के एक साथ क्यों लिखते हैं, लाइक P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. समझाता हूँ. देखो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. क्या ये बात सही है या गलत है? पहले बताइए. सही है ना? Yes, sir. एग्जैक्टली. तो बेटे जस्ट इमेजिन, मैं इसका डायरेक्टली का साइन रिमूव करूंगा तो कांस्टेंट लगाऊंगा और ये ऐसा हो जाए. अब ये v यहाँ डिवाइड, वहां जाकर बेटा मल्टीप्लाई. तो ऐसे बना PV इज इक्वल्स टू K. किसके लिए? बिफोर के लिए. ठीक है, आफ्टर के लिए भी PV बनेगा. तो बिफोर और आफ्टर प्रेशर रिमेन सेम बट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर ड्यू टू मोमेंटम. तो ये इस तरह P1 V1 P2 V2 मेरा वजूद में आया पहली बार. ओके बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैथमेटिक्स में आता है. अगर ये कॉन्सेप्ट पक्का नहीं है इसका मतलब मैथ्स में प्रॉब्लम है. मैथ्स क्लियर सर होगा तो तो दोनों का k कांस्टेंट होगा ना. हाँ ऑब्वियसली बात है. ये रखा मैंने नोट्स में है ये रहा. सही, आप ये ग्राफ से समझा Sir, सकते हैं जो आपने constant is प्रेशर. the temperature. कांस्टेंट द टेम्परेचर. बिल्कुल ठीक है. देखो दो लॉज हैं, एक बॉयल्स लॉ एक चार्ल्स लॉ. समझना मेरी बात को बेटा. Sir, बॉयल्स में Charles law is the temperature one. एक मिनट, बॉयल्स में टेम्परेचर कांस्टेंट है.
ठीक है, सही है। और चार्ल्स आपके सिलेबस में नहीं आता वैसे, लेकिन आप फिर भी समझ लो कि वहां कौन कांस्टेंट है, वहां वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, चार्ल्स के नाम से नहीं आता, बाकी ये थ्योरी कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एज आई टोल्ड यू, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर एज आई टोल्ड यू, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, बॉयल्स और चार्ल्स। ठीक है बेटा, समझ में आ गया कौन कांस्टेंट है कहाँ पर? ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ग्राफ भी देख लो बेटा। डायरेक्टली ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, आपको ऑलरेडी पता है। तो जब वो डायरेक्टली है, ठीक है, तो जब वो डायरेक्टली है, अब आप गौर से देखो, यहाँ पे 1/v लिखा हुआ है। 1/v मतलब तो ये 1/v उन्होंने करके दिखा दिया, तो आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ ही है। वरना अगर v और p प्रेशर और वॉल्यूम ऐसा हो तो इनवर्स का ग्राफ याद है ना, इनवर्स कैसे होता है? जहाँ पे वॉल्यूम सबसे कम है वहां प्रेशर सबसे ज्यादा है, और जहाँ वॉल्यूम सबसे ज्यादा है वहां प्रेशर सबसे कम है। ऑपोजिट हो रहे दोनों। तो इनवर्स का ग्राफ आपको पता है, फिजिक्स से पढ़ के आए हो, ऐसे ही बनता है हमेशा। तो ये डायरेक्टली का ग्राफ और ये इनवर्सली ग्राफ। यहाँ ये डायरेक्टली क्यों हो रहा है? क्योंकि 1/v लिखा हुआ है। तो आपने पेपर में क्या लिखना होगा कि v सर लिखा तो है 1/v लिखा है। प्रेशर अगर इज पेपर में डायरेक्टली, सर तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, तभी ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है ना, ये जो जी जी ग्रेडियंट जी है। जी, लेकिन लेकिन ये टेम्परेचर वाला ग्राफ है नहीं। ये कौन सा ग्राफ है? और से देखो क्या लिखा है यहाँ पर वॉल्यूम, ना, वन इनवर्स ऑफ अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम। हाँ, इनवर्स वॉल्यूम। हाँ हाँ, इसीलिए डायरेक्टली की लाइन आई है। अगर इनवर्स नहीं होता, ऐसा होता जैसे लेफ्ट हैंड पे, तो इनवर्स की लाइन बनती टेढ़ी वाली, पैंड वाली। ओके, सही है। जो आपको बताया एग्जैक्ट सेम वही चीज। देखो, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो करीब करीब आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे तो कोलिजन बढ़ जाएगा, कोलिजन बढ़ जाएगा तो उनकी ओवरऑल फोर्स बढ़ जाएगी, फोर्स बढ़ जाएगी तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स से जाके तो टकराते हैं सर कंटेनर से। सही है, ये मैंने सारी बात यहाँ लिख रखी है। इसको आप गौर से बैठ के, सुकून से बैठ के पढ़ें, पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ एक बॉक्स था, वॉल्यूम सही था, क्या हुआ? प्रेशर डबल हो गया। कैसे? 2 बॉक्सेस आ गए। प्रेशर हाफ हो गया ना, तो प्रेशर वो सॉरी वॉल्यूम हाफ हो गया ना, वॉल्यूम क्या हो गया? हाफ, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डबल, 2p हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? ओके हो गया? अभी समझ में आ गई सर पूरी तो बात? चार्ल्स हाँ, लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है और बॉयज लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, सही। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है, बॉयज लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, ये लिखा हुआ। सही है, समझ में आती है बात? ओके हो गया? ओके सर, समझ में आ गुड, गया। जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा प्रेशर का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है।